अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज मैंने इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म करना है। इसका जो लेक्चर था वो आई नो इट वाज वन लेक्चर बट वो हम पिछले 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ रिलेटिवली लॉन्ग टॉपिक, सो इट रिक्वायर्ड सम टाइम। So आज basically we'll study about hypersensitivity reactions, and these are kind of difficult and they're also confusing at times, but these slides are very comprehensive and they have only highlighted the important things that you should know. So I think that you might find it easy, as well as हम autoimmune reactions जो है इसके बाद शुरू करेंगे और we'll try to cover up as much as possible, or we'll cover up the remaining in the next lecture. तो hypersensitivity reactions जो हैं basically इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इम्यून सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ा है। टू recap, obviously all of you must know by now that there is an innate immune system that is always present no matter what, and there is an adaptive immune system which is very specific to the specific kind of antibody that attacks your body. Basically जो हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं ये काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी जब ज़्यादा एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे या एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे, तो दैट इज़ बेसिकली अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. So these are injurious consequences in a sensitized host following contact with specific antigen, deals with injurious aspect of heightened or exaggerated immune response leading to tissue damage, disease, or even death, concerned with what happens to the host rather than what happens to the antigen. So basically अभी तक हमने जितनी भी डिटेल में पढ़ी, हमने innate immunity पढ़ी, हमने adaptive immunity पढ़ी, जिसमें हमने humoral immunity पढ़ी, हमने cell mediated immune response पढ़ा. That was all for the means of eradicating or eliminating any injurious कोई भी agent that enters the body, बेशक वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या पैरासाइट हो या फंगस हो. सो लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज के बॉडी उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, बट जो वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो है आपके जो आपकी अपनी होस्ट की जो बॉडी होती है, जो आपकी अपनी बॉडी होती है, उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है. क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो एज़मा की है. अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि एज़मा जो होता है उसमें क्या बेसिकली उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और वो क्यों होता है. But the important thing that you should know in case of hypersensitivity reactions, that this is basically an exaggerated immune response that will eventually cause damage to the host as well. There are 4 different types of hypersensitivity reactions, and you should always know them, because abhi is level pe and beyond from this level you will always be tested about these, and you should remember कि जो type 1 है वो क्या है और type 2 क्या है, type 3 क्या है और type 4 क्या है. ये बहुत specific चीजें होती हैं that are really important. So जो type 1 होती है, it is in type 2 is antibody mediated hypersensitivity, type 3 is immune complex mediated hypersensitivity, and type 4 is cell mediated hypersensitivity. We will know what these words means once we go through the slides and once we study these in detail. So I'll move forward. हम पहले पढ़ते हैं type 1 या immediate hypersensitivity के बारे में, या immediate hypersensitive immune response के बारे में. इसको आप एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हो, मतलब जो आप कहते हो जो कि मुझे एलर्जी हो गई है, या कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब पोलन से एलर्जी होती है. वो जब भी मौसम चेंज होता है या जब भी स्प्रिंग का सीजन आता है, वो लोग हर वक्त जो है उनको स्नीजिंग होती रहती है, उनकी रनी नोज होती है.
बहुत कॉमन है, इट्स रियली कॉमन. It has two phases: immediate, where antigens cross-links with the preformed IgE on the pre-sensitized mast cells, degranulation of mast cells, release of histamine. There is a late phase where chemokines attract the inflammatory cells, causing inflammation. Antigens will react with fixed antibodies. Antibodies कौन सी होंगी? IgE होंगी. इसमें मास्ट सेल्स और बेजोफिल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल्स आपके पास एनाफाइलेक्सिस है और एलर्जिक एस्मा है. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि बेसिकली होता क्या है इसके अंदर. व्हाट इज हैपनिंग इज के okay. Basically, I know this seems to be a bit complicated in the slide, but the thing is कि type 1 hypersensitivity reaction के अंदर चीज़ क्या होती है कि for example जैसे जो भी person X है उसके अंदर जेनेटिकली जो है, मतलब उसकी जीन्स में ही ऐसी कोई बात है कि वो उसको पोलन से एलर्जी है, मतलब वो एलर्जिक है पोलन से. मतलब उसमें उसका कोई कसूर नहीं है. देर आर नो एनी प्री डिफाइंग फैक्टर्स के फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मोकिंग करती हूँ तो फिर मुझे एलर्जी होगी, या मैं अगर फीमेल हूँ तो मुझे एलर्जी होगी. देर इज नो प्रॉपर प्री डिस्पोजिशन टू एनी अदर फैक्टर्स. कोई और उसके रिस्क फैक्टर्स नहीं होते. उसमें बस ये होता है कि उस बंदे की मतलब जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, या उसको वो प्री जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज होता है. अब क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम वो उसका इनकाउंटर होगा पोलन के साथ, तो बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगी. और बॉडी को ऑब्वियसली वो चीज़ पसंद नहीं आई उसकी, उसको वो स्पेसिफिक है उसके लिए, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो कि एलर्जिक होगा टू पोलन. तो फर्स्ट टाइम जो क्या होगा कि उसकी जो जब जब भी पोलन उसकी बॉडी इनकाउंटर करेगी तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट. अब जब उसको क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं टू दैट पर्टिकुलर पोलन. व्हाट विल हैपन इज कि जब ही दोबारा बेशक 10 दफा दोबारा जो है, या बेशक थ्रू आउट द लाइफ टाइम, whenever that person will encounter pollen again in his or her lifetime, तो क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा कि इमीडिएटली जो है वो पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडीज हैं, इसके अंदर जो एंटीबॉडीज एट एक्शन होती हैं उनको आप आईजीई एंटीबॉडीज कहते हो. तो जो प्री फॉर्म्ड आईजीई एंटीबॉडीज आपके पास प्रेजेंट हैं वो जाके लग जाएंगी मास्ट सेल्स के ऊपर. मास्ट सेल्स हम लोगों ने पढ़े थे, ये भी मतलब इम्यून सिस्टम के टाइप सेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास हिस्टामिन आता है. तो जो आपके पास जब एंटीजन जो है, एंटीजन इसमें फॉर एग्जांपल हम पोलन का जिक्र कर रहे हैं, वो जाके बाइंड करेगा ऑलरेडी जो प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर प्री फॉर्म्ड आईजीई एंटीबॉडी. ठीक है, वो क्या करेगा कि वो जाके मास्ट सेल्स पे अटैच होगा और मास्ट सेल्स की डीग्रैनुलेशन करा देगा. डीग्रैनुलेशन का ये मतलब होता है कि उनके अंदर जो भी कंटेंट था, मतलब जो भी उन्होंने साइटोकाइन या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस करने थे वो किसी वेसिकल के अंदर उस सेल के अंदर पड़े हुए थे, तो उसको वो रिलीज कराएगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रिलीज आपका केमिकल होता है उसको आप हिस्टामिन कहते हो. और हिस्टामिन जो होता है वो इन सारे जो आपके सिम्टम्स होते हैं जो एक एलर्जिक रिएक्शन के अंदर आपको नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको रनी नोज होगी, आपको स्नीजिंग होगी, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी जो कॉज कराता है वो एंटी हिस्टामिन कराता है. आपकी नाक बंद हो जाएगी बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं हिस्टामिन कराता है. तो लिहाजा इन पेशेंट्स के अंदर अगर आप एंटी हिस्टामिन देते हो एज अ ड्रग, एंटी हिस्टामिन्स होती हैं बहुत ज्यादा, जर्टिक के नाम से पाकिस्तान में यूज की जाती है. तो व्हाट विल हैपन इज कि उनको रिलीफ होगा ऑफ सिम्टम्स. फिर ये इसका एक इमीडिएट फेज होता है, इसके बाद एक इसका लेट फेज होता है जिसके अंदर जो है उसके इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स को केमिकल मीडिएटर्स अट्रैक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इमीडिएटली तो बस हिस्टामिन रिलीज होता है, बट लेटर फेज में जाके वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है.
और ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये इतना सवेयर हो सकता है इन सर्टन पीपल के इट माइट इवन कॉज एनाफाइलेक्सिस। हमने शॉक के अंदर एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़ा था, जिसके अंदर बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा स्वेयर होता है कि पेशेंट जो है वो शॉक की स्टेट में चला जाता है। तो जब अगर आप लोगों ने किसी बंदे को अगर फॉर एग्जांपल किसी को अगर पीनट्स से एलर्जी होती है, आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा हमेशा जब भी जाते हो तो उसमें किसी भी चीज के अंदर पीनट्स होते हैं तो उसमें आगे स्टार बना के लिखा होता है कि दिस मे कंटेन नट्स और एनीथिंग लाइक दैट, just to make sure कि if anyone is having allergy to nuts so he should not consume that product, क्योंकि इट माइट गो टू अ स्टेट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है उस पेशेंट के लिए, और वो उससे इवन द पेशेंट कैन डाई अगर उसको फौरन जो है वो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट नहीं मिलती। सो इंटरनेशनली जो है आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट if a person is known to be allergic to any particular thing, फॉर एग्जाम्पल पीनट हो सकते हैं, पेनिसिलिन से बहुत लोग एलर्जिक होते हैं। अगर कोई भी बंदा किसी भी चीज से एलर्जिक है तो व्हाट हैपेंस इज के मतलब एज फार एज आई नो इन द यूएस एट लीस्ट they always carry a card with them which says that they are allergic to this particular thing, and they have an EpiPen with them। EpiPen के अंदर बेसिकली एपिनेफ्रिन होती है जो कि अगर इन केस अगर वो गलती से कुछ इस तरह की चीज खा लेते हैं जिनमें उनको नहीं पता चलता कि इसके अंदर नट्स थे, तो वो जो है वो फॉरेन जो कोई भी उनके साथ बंदा होगा या पब्लिक में कोई बंदा होगा वो एपिपेन उनके इंजेक्ट करेगा और फॉरेन जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक से प्रिवेंशन हो सकती है एपिनेफ्रिन के थ्रू। और दूसरी एग्जांपल आपकी एलर्जिक एजमा है। ये बेसिकली जो है एक डायग्राम है illustrating what is actually happening during the type 1 hypersensitivity reaction। So बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये एलर्जन है जो कि पोलन होगा। ये डायग्राम आई गेस रॉबिन से ली गई है, दैट इज रिलेटिवली difficult book but we have always studied it, but to understand Robbins you have to study Robbins। उसकी एक डायग्राम को अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो it might be a bit complicated for you people because if to understand the diagram you need to understand the text as well, but I'll try to explain। एलर्जन है फॉर एग्जांपल पोलन जो है वो बॉडी के अंदर आया है और जो बी सेल्स के साथ एंटीबॉडी जो थी उसके साथ वो अटैच हो गया है। अब ये आपका जो है ये फर्स्ट टाइम बेसिकली फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है इस पेशेंट का टू दिस पर्टिकुलर एंटीजन जिसको आप पोलन कहोगे। there will be activation of Th2 cells and IgE cell switching in B cells। So basically जो B cells होंगे वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और B cells जो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे इनटू प्लाज्मा और IgE एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। there will be production of IgE antibodies। अब IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। अब बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके पास जब दोबारा आपके पास एक्सपोजर होगा इस चीज़ का, सो अब क्या होगा कि क्योंकि आपके पास ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं विद इन द बॉडी, व्हाट विल हैपन इज कि पोलन दोबारा आया अगर बॉडी के अंदर तो ये जो IgE एंटीबॉडीज हैं ये बाइंड करेंगी पोलन को और फिर जाके बाइंड करेंगी। यू कैन सी दिस इज eventually then they will bind to the mast cells और फिर mast cells के साथ जो है वो मास्ट सेल्स की डीग्रैनुलेशन होगी जिसमें बेसिकली उसके जो सेलुलर कंटेंट्स थे वो रिलीज होंगे। रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स, रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। सो हिस्टामिन जो है इवेंचुअली जो है वो रिलीज होगा। मीडिएटर्स में अब आपके पास सबसे पहले जो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इज मिनट्स आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू एलर्जन। उसके अंदर आपके पास वेजो एक्टिव अमीन्स हैं और लिपिड मीडिएटर्स हैं, और जो लेट रिएक्शन है उसके अंदर आपके पास साइटोकाइंस हैं जो कि अबाउट 2 to 8 hours आफ्टर रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन। So the important thing to know or to the important thing to memorize in case of type 1 hypersensitivity reactions is it is always on repeated exposure to the particular antigen
मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं पोलन इनकाउंटर करूंगी तो मुझे इस तरह से सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट सेकेंड टाइम क्योंकि उस वक्त सिर्फ मेरी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होंगी उसके अगेंस्ट, मेरी बॉडी अभी फर्स्ट टाइम उसे इनकाउंटर करेगी और मेरी बॉडी जो है उसको उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। बट एज सुन एज सेकेंड एक्सपोजर होगा, जिसको आप रिपीट एक्सपोजर कहोगे, जैसे ही रिपीट एक्सपोजर होगा व्हाट विल हैपन इज कि वो, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, they will bind to that particular antigen, they will bind to mast cell, and they will cause degranulation of mast cell, causing the release of histamine in the immediate phase and of inflammatory mediators in the late phase. Okay. नेक्स्ट अब वी हैव इसके अंदर फिर क्या क्या आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। सो दिस इज अ ह्यूज रेंज ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दैट मे अकर in case of a type 1 hypersensitivity reaction. Dyspnea होगा, that is the shortness of breath. Bronchospasm होगा, बेसिकली आजमा के अंदर यही होता है कि जो आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा देता है, आपके जो ब्रोंकाई होते हैं उनका स्पाज्म करा देता है। वीजेस होंगी, ब्रोंकाई होंगी। वीजेस होती हैं जो जब आप सांस लेते हो तो सीटियों की तरह जो आवाज आती है उसको आप वीज कहते हो। इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशंस, आपकी बहुत ज्यादा सिक्रीशंस जो है, म्यूकस जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है फॉर पीपल फॉर विद फूड एलर्जी। दिस वाज मोर और लेस स्पेसिफिक टू एजमा। ये वाली जो सारे सिम्टम्स हैं दे वर स्पेसिफिक टू asthma. Then you have, but they can also be present in case of pollen allergy. But food के case में there will be, for example, an itchy rash, diarrhea, abdominal cramps, hyperthermia meaning patient को fever हो जाएगा, hypotension हमने already पढ़ा कि उनका blood pressure जो है वो low हो सकता है, and there is a probability of going into shock. ओके अब एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। एलर्जीज हमने ऑलरेडी पढ़ी, ब्रोंकियल एज्मा एंड एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इतना ज़्यादा सवेयर हो कि वो उसको पेशेंट को जो है वो शॉक की कंडीशन में ले जाए, तो दैट इज बेसिकली एनाफाइलेक्सिस और एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे बाइंड टू द सेल सरफेस एंटीजन कॉजिंग सेलुलर डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड सेलुलर डिसफंक्शन। सो बेसिकली इसको आप इसमें क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज होंगी आपकी वो एंटीजन्स जो आपके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनको बाइंड करेंगे और सेलुलर डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करेंगे। इसको आप साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हो, बिकॉज साइटोटॉक्सिक क्या होगा, दैट विल इवेंचुअली कॉज द किलिंग ऑफ द सेल। So basically antibodies will bind to the surface of the cell, एंटीजन जो स्पेसिफिक एंटीजन होगा उनके साथ वो बाइंड करेंगी जो सरफेस ऑफ सेल पे होगा और इवेंचुअली दे विल कॉज सेलुलर डिस्ट्रक्शन। इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, antibody dependent cellular dysfunction, that is by binding to cellular receptor, blockage of downstream processes. So I will explain it to you. इसमें क्या क्या होता है कि okay, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। ओके अच्छा, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर देयर आर एंटीबॉडीज दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि कॉमन होती है। उसमें बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि एक बंदे को, या अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक किडनी की डिजीज होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके अंदर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि बच्चों के अंदर ये डिजीज होती है मोस्टली। बच्चों को अगर इन्फेक्शन होती है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरियम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। जब स्ट्रेप्टोकोकल उसको बेसिकली अगर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, फिलहाल फॉर योर स्टैंडर्ड आप लोग बस ये याद करो कि स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरियम होता है। वो बच्चे जो है उससे बेसिकली आपको इट कैन कॉज यू फेरेंजियल इन्फेक्शन, जो आपका फेरिंग्स है उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं जिसको आप फेरेंजाइटिस कहते हो। तो पेशेंट को जब फेरेंजाइटिस होता है
उस पर्टिकुलर बैक्टीरियम से, तो उस बैक्टीरिया का जो है एक स्पेसिफिक उसका एंटीजन होगा। ऑब्वियसली हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। उसका जो एक प्रोटीन होता है या जो उसका एक एंटीजन होता है वो होता है वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ समथिंग दैट इज प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी एज वेल। जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसी तरह का एक एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस को आप मोलेकुलर मिमिक्री कहते हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया के ऊपर एक पर्टिकुलर एंटीजन था जिसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, वो ही चीज जो है उससे एक मिलती जुलती चीज, एक सिमिलर स्ट्रक्चर की फॉर्म की चीज जो है वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली एंटीबॉडीज तो दे कैन नॉट टेल कि ये जो चीज थी ये सिर्फ बैक्टीरिया की थी, ये चीज जो थी ये आपकी बॉडी की थी। एंटीबॉडीज ने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करनी है, उसने अपने रिकॉग्नाइज करना है एंटीजन को और एंटीजन के साथ उसने जाके बाइंड करना है। व्हाट विल हैपन इज के जो है वो उसके साथ जाके आपका जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी उस बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ, वो जाके बाइंड कर जाएंगी आपके अपने बॉडी का जो आपका जो उससे मिलता जुलता एंटीजन था उसके साथ, और वो कॉज करेंगी डिजीज। वो सेलुलर डिस्ट्रक्शन कराएंगी जिसको आप कहोगे कि सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के सेल की किलिंग कराएंगी। और दूसरी चीज होगी सेलुलर डिस्फंक्शन। Cell mediated cytotoxicity is one thing and cellular dysfunction is another thing. Cytotoxicity का ये मतलब होता है कि वो cellular destruction करा रही है एंटीबॉडी, और दूसरी चीज सेलुलर डिस्फंक्शन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाती है टू अ पर्टिकुलर सेल, तो जो सेल ने जो काम करने थे, फॉर एग्जांपल उसका काम अगर था क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल उस सेल का जो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन था, फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का इंसुलिन प्रोडक्शन एक फंक्शन होता है, वो काम जो है वो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो फंक्शन है वो खराब हो जाएगा, जिसको आप इवेंचुअली कहोगे कि डिसफंक्शन है। इसके अंदर जो है एग्जांपल्स आपके पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई बंदा ए पॉजिटिव ब्लड है, उसका ब्लड ग्रुप है, और आप अगर उसको बी पॉजिटिव जो है वो ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करोगे, तो जो ए पॉजिटिव बंदा होता है उसके अंदर जो है एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब बी के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं और वो ए को एक्सेप्ट कर सकता है। या अगर आप इवन उस बंदे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप भी इंजेक्ट करोगे या ट्रांसफ्यूज करोगे तो उसके उसके अंदर रिएक्शन होगा, बिकॉज ए बी ब्लड के अंदर भी बी एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, और जो ए पॉजिटिव आपका बंदा था उसके अंदर यू विल हैव ओनली यू विल हैव एंटी बी एंटीबॉडीज, तो वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज करेंगी। Erythroblastosis fetalis. Obviously, these are the name of the diseases that are basically part of the type 2 hypersensitivity reaction. If I go on to explaining all these diseases in detail, it will take a lot of time. So I'll just read out the names, and if any of you are interested in knowing what it is, because at this level you don't really need to know, because obviously ab har disease ke lag pathology to we cannot study, it's beyond the scope. So you can go ahead and search it a bit just to make sure कि you know कि what is actually going on. Autoimmune hemolytic anemia, basically इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है अगेंस्ट इट्स ओन ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स के अगेंस्ट हेमोलिसिस क्या होता है, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसको आप हेमोलिसिस कहते हो। तो अगर ऑब्वियसली इफ देर आर एंटीबॉडीज बीइंग प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट वंस ओन red blood cells, so they will eventually result in destruction of the red blood cells, तो उसको आप autoimmune hemolytic anemia कहते हो। Pemphigus vulgaris, ये बेसिकली एक स्किन डिजीज होती है जिसमें आपकी स्किन जो है वो स्लो ऑफ करना शुरू हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है, एंड एज वेल एज ड्रग रिएक्शंस। माइस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली एक डिजीज है, इसको हम इन डिटेल अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस इट। गुड पास्चर सिंड्रोम, टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट जो है, जो आपका कोलेजन होता है, आपने कोलेजन का नाम सुना होगा,
वी हैव स्टडीड इट एज वेल। जो उसका टाइप 4 होता है कोलेजन का, उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, और इसमें आपको बेसिकली रीनल सिम्टम्स आते हैं और लंग के सिम्टम्स आते हैं। सो दो जो है ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है, गुड पास्चर सिंड्रोम। पर्निशियस एनीमिया, इसके अंदर आपका जो बेसिकली दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर इज समथिंग जो आपका जो विटामिन B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो बिकॉज अगर इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट होगा तो विटामिन B12 आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो जिसकी वजह से इवेंचुअली अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया होता है। एक्यूट रूमेटिक फीवर, ये भी सिमिलर टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो स्ट्रेप्टोकोकस था उसने प्रोड्यूस की थी जो एंटीबॉडीज, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं विद हार्ट के प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप एम प्रोटीन्स कहते हैं, उनके साथ रिएक्ट करती हैं, सो दैट विल कॉज एक्यूट रूमेटिक फीवर। Now third is the type 3 hypersensitivity reaction, immune complex mediated. इसके अंदर अब सिर्फ एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, बट व्हाट विल हैपन इज कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो फॉर्म होंगे जिनको आप इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कहते हो, और वो एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, विच विल अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स। सो बेसिकली जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था उसके अंदर एक्सक्लूसिवली देयर वाज अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन्स ऑफ वंस ओन बॉडी, और उसके खिलाफ जो था वो एंटीबॉडीज जो थी वो एंटीजन्स के साथ बाइंड कर रही थी और वो कर रही थी किलिंग ऑफ दोज एंटीजन्स। बट व्हाट विल हैपन इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज के इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो कि इवेंचुअली एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, जो कि अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं उनको रिलीज करेंगे। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कहाँ कहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर कर सकते हैं, स्किन के अंदर कर सकते हैं, किडनी के अंदर कर सकते हैं, जॉइंट्स के अंदर कर सकते हैं। डिजीजेस कौन सी होती हैं? SLE, जिसको आप ल्यूपस कहते हो। SLE के बारे में हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। पोली आर्थराइटिस नोडोजा के बारे में भी विल स्टडी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आर्थस रिएक्शन, सेरम सिकनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टेटनस वैक्सीन, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस। So these are certain examples. Obviously इन सबको explain करना is beyond the scope। अगर इनमें से कुछ diseases हम autoimmune diseases का जो अगला वाली lecture है उसके अंदर we will study। So इसके अंदर basically what is happening is सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में अभी जो आई एम टीचिंग यू उसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर डिफरेंसेस, बेसिकली जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं ये क्या क्या, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं या इनके पैथोजेनेसिस क्या होते हैं, और आपको जो एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद ही बेसिकली यू विल जस्ट नो बाय अगर आप लोग आगे जाके इन सारी डिजीजेस को इन डिटेल पढ़ोगे तो यू विल नो कि किस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। बट द थिंग इज के आप लोगों को इनका पैथोजेनेसिस जो है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट जो टाइप 1 था उसके अंदर हमने एलर्जी पढ़ी थी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एलर्जन को इनकाउंटर करते हो तो आपकी बॉडी IgE प्रोड्यूस करती है। जब आप सेकेंड टाइम उसको इनकाउंटर करते हो तो IgE जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होता है वो उस एंटीजन के साथ बाइंड करता है और फिर मास्ट सेल से बाइंड करता है और उसकी डीग्रानुलेशन होती है और हिस्टामिन रिलीज होती है और उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। टाइप 2 में हमने ये पढ़ा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लड जो है, अगर आपने किसी A पॉजिटिव बंदे को B पॉजिटिव ब्लड दे रहे हो तो उसके अंदर ऑब्वियसली B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है उस बंदे के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो B सेल्स को जाके बाइंड करेंगी और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगी। थर्ड अब हम पढ़ रहे हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकंड के अंदर सिर्फ एंटीबॉडी इन्वॉल्व थी, अब आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स एक इन्वॉल्व है। बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको आप इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हो। First there is the formation of immune complex, then is the deposition of immune complex, and third is the removal of the immune complex from the vessel wall. So
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो है, so this was the type 3 hypersensitivity reaction. Type 4 hypersensitivity is a cell-mediated hypersensitivity. It is initiated by sensitized T lymphocytes. Principal pattern of immunological response to intracellular microbiological agents, particularly Mycobacterium tuberculosis, as well as viruses, fungi, protozoa, and parasite response does not involve antibodies. So, जो type 4 basically टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है, जिसको आप सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या कहते हो, इसके अंदर आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो ना किसी एंटीबॉडी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ना किसी ऑब्वियसली एंटीजन जो है इन्वॉल्व होगा, बट इम्यून कॉम्प्लेक्स की एज सच इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बट आपके पास इन्वॉल्वमेंट जो है दैट इज ऑफ अ टी लिम्फोसाइट्स, जो हमने आप ऑलरेडी पढ़े। और सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है जो कि ऑलरेडी सेंसिटिव हैं टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी जो है स्पेसिफिक हैं टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन। प्रिंसिपल पैटर्न ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंट्रासेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स, पार्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके अंदर एग्जांपल दी गई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। ये एक बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप कॉमनली रेफर टू एज टीबी, व्हिच इज रियली कॉमन इन आवर कंट्री, वो कॉज करता है इस सारी चीज़ को। सो बेसिकली मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी बॉडी को इन्वेट करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं जाते, वो सेल्स को अक्सर नहीं, सेल्स के अंदर नहीं जाते, इंट्रासेलुलर नहीं होते। बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है कि वो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जो है वो चला जाता है। सो ऐसे बैक्टीरियाज के खिलाफ या इस तरह के वायरसेस के खिलाफ, वायरसेस भी आपके सेल्स के अंदर जाने की उनके अंदर होती है, उनका फीचर होता है कि वो सेल्स के अंदर इन्वेट कर लेते हैं। तो जो वायरसेस और ऐसे किसी भी चीज़ के खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो इसके आगे दो फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज द डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि CD4 टी सेल्स जो हैं वो मीडिएट करते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन CD4 पॉजिटिव टी सेल्स and class 2 major histocompatibility complex, differentiation of CD4 cells to Th1 cells, release of interleukin 12, interferon gamma, interleukin 2, TNF alpha, and lymphotoxin, tuberculin skin test, contact dermatitis, granulomatous inflammation. So बेसिकली जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें ये बेसिकली इज, अगर आप लोग जो पिछले लेक्चर को रिकॉल करो, इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की है। अगर आप लोगों ने याद होगा तो हमने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी या MHC जब पढ़ा था, तब आप लोगों को आई हैव टोल्ड यू पीपल के जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं वो हमेशा बाइंड करते हैं क्लास 2 ऑफ MHC। सो यहाँ पे अगर एक्सपोजर होगा टू अ पर्टिकुलर एंटीजन, तो जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं वो MHC के क्लास 2 को बाइंड करेंगे, फिर उनकी डिफ्रेंसिएशन होगी इनटू TH1 टाइप ऑफ सेल्स, जो कि दैट इज हेल्पर सेल्स जो होते हैं, उसकी जो TH1 वैरायटी होती है, और उनका काम क्या होता है कि वो इंटरफीरॉन गैमा जो है मेजरली रिलीज करते हैं। बट जो अदर देयर आर अदर inflammatory mediators that are being released by those cells. इंटरल्यूकिन 12 है, इंटरल्यूकिन 2 है, TNF अल्फा एंड लिम्फोटॉक्सिन। इसके अंदर एग्जांपल आपके पास ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट की होती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड granulomatous inflammation. So tuberculin skin test क्या होता है कि ये एक obsolete skin test है for people for diagnosing tuberculosis. So basically इसके अंदर अगर कोई भी बंदा infected है with tuberculosis, उसके अंदर भी obviously आपको tuberculosis के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि उसमें primary infection होती है, और अगर जब उसकी इम्यूनिटी लो होती है या उसका वेट कम होता है, तो वो जो है रीएक्टिवेट होके फुल फ्लेज डिजीज कॉज करती है। तो जो पेशेंट या जो भी बंदा उसको इन्फेक्शन हुई भी है टीबी की, तो उसके अंदर वो इंजेक्ट करते हैं ट्यूबरकुलिन रिएजेंट को, और अगर उसके अंदर पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, तो ऑब्वियसली ये सारा जो कैस्केड है वो होगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से उस एरिया में जहाँ वो इंजेक्शन दिया जाता है, वो एरिया जो है वो
मतलब वो स्वेल हो जाता है, वो मतलब वो रेड हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसका साइज मेजर करते हैं कि उसका कितना साइज है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। The second is the T cell mediated cytotoxicity. Obviously जब cytotoxicity का word use किया जाता है तो CD8 positive T cells जो हैं वो at function होते हैं. The sensitized CD8 positive T cells kill antigen bearing target cells, graft rejections, virus infections and tumor immunity. So basically what will happen is कि जो CD8 पॉजिटिव T cells हैं वो किल करेंगे जो cells को। देखो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको आप साइटोटॉक्सिक कह रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जो किलिंग ऑफ द सेल्स थी दैट वाज कैरिड आउट बाय एंटीबॉडीज, बट इस केस के अंदर द किलिंग ऑफ सेल्स इज बीइंग कैरिड आउट बाय द CD8 positive T cells. So basically what will happen is कि for example हम graft rejection की बात करते हैं। graft rejection क्या होती है कि अगर आप किसी चीज़ का ट्रांसप्लांट करते हो किसी बंदे के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी की किडनी फेलियर हो गया किसी बंदे का और उसको आप किडनी ट्रांसप्लांट देते हो, तो उसके अंदर आपका जो आप कहते हो कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गई है या वो ट्रांसप्लांट को वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो उसमें बेसिकली ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है एज अ फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन बॉडी, और उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करती है। तो जब वो प्रोड्यूस करेगी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, व्हाट विल हैपन इज कि उसके स्पेसिफिक उस जो जो फॉरेन एंटीजन है दूसरे बंदे की किडनी का, उसके अगेंस्ट इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग CD8 positive T cells, and then eventually what will happen is कि वो जो है वो उसकी किलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड इवेंचुअली दिस विल रिजल्ट इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। दिस इज द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मैंने आपको बताया था, इसको मेजर करते हैं पूरा। वो बेसिकली आपको इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल उनका यहाँ पे अगर इंजेक्ट किया था उन्होंने, लेबोरेटरी में कैरी आउट होता है और वो यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, एंड देन यू हैव टू गो आफ्टर 2 days टू गेट इट measured। वो आपको measure करेंगे और दे विल टेल यू कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Then you have other examples is type 1 diabetes, mellitus, and contact dermatitis. Summary acute allergic reaction type 1, antibody directed against cell surfaces is type 2, immune complex is type 3, and delayed hypersensitivity. TB skin test is type 4. Anyone has any questions before I move on to the next lecture? मैम हाँ जी। मैम बीच में बता दे, वो ना आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो। क्या क्या आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। क्या कह रहे हो शुमाइला कौसर? अच्छा आई विल टेक। हाँ जी हाँ जी। मैं कुछ लोगों को मीट वगैरह से एलर्जी होती है देखने से, वो क्या होता है? देखने से? जी, खाने से नहीं, मतलब देखने से। नहीं, वो तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो उससे एलर्जी नहीं होती। ओके। देखो अगर आप किसी चीज से फोबिया कहते हो वो ऑब्वियसली आपकी साइकियाट्री के अंदर आता है। कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, कुछ लोगों को हीमोफोबिया होता है जो ब्लड नहीं देख पाते, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो साइकोलॉजी में या साइकियाट्री के अंदर आता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ डिजीज, बट इट्स ऑब्वियसली एक कंडीशन। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन कुछ लोगों को अब जैसे स्टेज फ्राइट होता है, सो दिस इज जेन्युइनली प्रेजेंट, बट दिस इज अ साइकियाट्रिक थिंग, नॉट अ पैथोलॉजिकल। मतलब पैथोलॉजिकल है लेकिन मतलब बॉडी से रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग से रिलेटेड है। ठीक है ओके। मैम किसी को फंगस की वजह से एलर्जी हो जाए तो वो क्या इसमें क्या होता है? फंगस की वजह से एलर्जी हो जाए, क्या फंगस मतलब? हो जाए मैम, फंगस हो जाए, वो एलर्जी उससे हो जाए तो उससे क्या होता है? फंगस से एलर्जी तो नहीं होती है, मतलब फंगस से ऑब्वियसली डिजीज होगी, आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, सारा कुछ होगा। एलर्जी तो यही होती है कि अगर एक पर्टिकुलर उसकी जो अभी हमने जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर चीजें पढ़ी हैं वही एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो होती है।
ये तो एलर्जी का जो टर्म है वो हर बंदा आम यूज कर रहा होता है कि अगर किसी को भी कुछ हल्की सी भी रेड हो गया है, कुछ हो गया तो ये एलर्जी हो गई है। ये चीज नहीं होती है। तो यू शुड एक्चुअली बस जस्ट स्टडी इट एंड जस्ट नो कि एलर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक चीज है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज की वजह से इन्फेक्शन हो के उसका कोई और मैनिफेस्टेशंस आ रही है तो एलर्जी नहीं है, वो उसकी डिजीज है, वो उस फंगस ने डिजीज कॉज की हुई है। मैम फंगस किस वजह से होता है? फंगस किस वजह से होता है? क्या मतलब? जी फंगस फंगस एग्जिस्ट करता है जैसे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या कह सकती हूँ, जैसे अल्लाह ने बनाया, आई डोंट नो। जी ओके, आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट मैम बिफोर मूविंग ऑन। हाँ जी, हाँ जी। मैम वो मीट की वजह से कौन सा फोबिया होता है बता रही थी? मीट की वजह से आई डोंट नो, मैं ब्लड की वजह से कह रही हूँ, हीमोफोबिया होता है कुछ लोगों को। हाँ, मीट की वजह से पता नहीं किसको होता है, लेकिन हो सकता है। लड़कियों को होता है ईद के ऊपर मटन की वजह से, अब वो हर एक को होता है, क्या कह सकते हैं। ओके मैम। लेकिन इट्स नॉट अ डिजीज, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ो। ओके, क्वेश्चंस एनीवन? ओके, आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। अहमद नदीम। मैम हाँ जी। मैम मेरा माइक बार बार ऑफ हो रहा है। आपका हर वक्त बाय माइक ऑफ हो रहा होता है, पिछली दफा भी हो रहा था शायद। अच्छा ठीक है, आई विल मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। अच्छा बच्चों, अटेंडेंस। अहमद नदीम, अहमद नदीम, एमन हबीब, प्रेजेंट मैम। एमन नसीर, एमन नसीर, अमानिया ताहिर, अमानिया ताहिर, अक्सा जावेद। यार बच्चों, अब इसके बाद ना मेरे पास आना, मैंने किसी की अटेंडेंस नहीं मार्क करनी, इफ यू आर नॉट कॉलिंग आउट योर नेम। अक्सा जावेद। I can see Aksa Javed, but I don't know where she is. Okay, Aksa Javed, you are present. Atiya Qayyum, Atiya Qayyum. यार क्या हो सारे? आयशा 1169, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आयशा हसन, प्रेजेंट मैम। मैम अतिया कहीं प्रेजेंट है, मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। ओके। आयशा मुगल, प्रेजेंट मैम। मैम एम नसीर बिस प्रेजेंट। यार उस वक्त कहाँ पे थी आप? मैं रहने देती हूँ यार, आप लोगों की अटेंडेंस में थक गई हूँ लिटरली। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। मतलब हर दफा मेरा मंडे और थर्सडे का शुरू दिन का इतना गंदा होता है आप लोगों की क्लास को ना, मतलब मैं थक गई हूँ आप लोगों के साथ बोल बोल के, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं मतलब रहने देती हूँ और सबको बच्चों को 5 नंबर दे देती हूँ क्लास प्रेजेंटेशन के। बेशक एक बंदे ने 10 क्लासेस अटेंड किए, बेशक एक बंदे ने 20 किया, किसी ने नहीं किया, बिकॉज आई मैम रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद यू पीपल। मैम कोई क्लास नहीं अटेंड करेगा फिर? तो ना करो फिर, अब मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं सुनना ना सुनो, वाइवा में मेरे सामने ही आना है ना, फिर मैं ऐप लगा दूंगी आप लोगों का। मेरे मैम इस पास तो तरह से है हम चांस। भी आप उड़ जाएंगे ना फिर। कुछ बच्चे हैं देखो, फिर वो भी उड़। देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे सुन रहे हैं, आई नो देम वेल, ठीक है, उन बच्चों को मुझे पता है। जो बच्चे नहीं हैं, और मतलब अब देखो 55 बच्चे अब आ गए हैं इस वक्त, और जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी देयर वर ओनली 2 पीपल, 20 पीपल आई गेस। तो दिस इज नॉट द वे। आप लोग फिर रिकॉर्डिंग्स, मैम रिकॉर्डिंग्स बुक करें, आप यूट्यूब पे अपलोड करें, ये करें वो करें, मैं आप लोगों के मार्क्स भी खुद ही लगा देती हूँ फिर अपनी मर्जी से। मैम मैं इस तरह करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जल्दी से। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट का फायदा नहीं है ना। देखो अगर इफ देयर आर 55 पीपल, आउट ऑफ देम 30 सुन रहे होंगे फिलहाल, और 25 आर asleep, वो लोग सोए में सारे। तो उसमें मुझे एज सच मतलब कि मैं यहाँ पे जो खपरी होती हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का फायदा नहीं है, बिकॉज ये रिकॉर्ड जो आप लोगों की पार्टिसिपेशन का होता है ना, दिस गोज डायरेक्टली टू द
पीपल जो ये सारे जूम हैंडल कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कि एक बंदे ने फॉर एग्जांपल अक्सा जावेद ने कितने बजे क्लास ज्वाइन की, कितने बजे लीव की, वो रिकॉर्ड सारा गया होता है। तो हमें कहा जाता है कि आप बेशक अटेंडेंस ना लो, बट द थिंग इज कि आई हैव टू, मतलब अगर मैं अटेंडेंस ना लूंगी तो आज मेरे पास ये मेरे ख्याल से 53 के बजाय 3 बच्चे होंगे। मतलब मैं क्या कह सकती हूँ सब बच्चों को। ओके अब जो बच्चे एब्सेंट मार्क हो चुके हैं वो एब्सेंट हैं, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी। दुआ खान, Present, ma'am. बिस्मा शाहिद, बिस्मा शाहिद, फरा नूर, Present, ma'am. फरीहा फातिमा, Present. फातिमा 1 to Present, 0 ma'am. 5, फातिमा नासिर, फातिमा नासिर, गालिया खान, गालिया खान, गानिया खान, गानिया खान, गुलशन सलीम, गुलशन सलीम, हाफिज मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट मैम। हिरा अहमद, Present, ma'am. हुमेरा सईद, इफ्रा अली, Present, ma'am. रीज आमिर, Present. इज़्ज़ा इलाही, Present, ma'am. कशफ मकसूद, Present, ma'am. किरण रानी, Present, ma'am. महानूर आसिफ, महानूर आसिफ, महानूर लियाकत, महानूर लियाकत, मलाइका ताहिर, मलाइका ताहिर, मोहम्मद हसन, प्रेजेंट मैम। मनाहिल कामरान, मनाहिल कामरान, मारिया शौकत, Present, ma'am. मरियम इम्तियाज, Present, ma'am. मनाहिल शहजाद, Present, ma'am. मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद मोहम्मद अबू बकर, यस मैम। मोहम्मद आमिर ताहिर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद राफे, प्रेजेंट मैम। मतलब मोहम्मद वाले सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं। मुकद्दस जहीर, मुकद्दस जहीर, नादिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। नेहा, Present, ma'am. निदा असलम, Present, ma'am. निमरा शहजाद, Present, ma'am. नूर नूर फातिमा, नूर फातिमा, नुजरत नूर, Present, ma'am. रिमशा, रिमशा, रिमशा इजाज, रिमशा इजाज, रिजवानुल हक, प्रेजेंट। सादिया बदर पराचा, Present. सादिया सैफ, Present, ma'am. सज्जल खान, Yes, ma'am. सना इकबाल। Present, ma'am. सना आपका इशू नहीं अभी तक रिजॉल्व हुआ, प्लीज ट्राई टू मैम रिजॉल्व हो इट, गया। अदरवाइज मैम अभी हो तक गया। आप ओके। सना जावेद, सना जावेद, ओके। सनम रफीक, Present, ma'am.
सारा रियाज, सारा रियाज। सिमाब प्याज, प्रेजेंट। सहर नदीम, सहर नदीम। शर्जील अरशद, प्रेजेंट मैम। शर ओके। शिफा उमर, Present, ma'am. शुमाइला कौसर, प्रेजेंट मैम। सिद्रा अब्बास, प्रेजेंट मैम। तैमूर मुजाहिद, तैमूर मुजाहिद। उमैर अहमद, प्रेजेंट मैम। उम्मे एमन, उम्मे एमन। उसामा इरशाद, यस मैम प्रेजेंट। वर्दा फातिमा, Present, ma'am. जैनब महबूब, जैनब महबूब। जिले हुमा। Present, ma'am. ओके, अटेंडेंस के अलावा कोई क्वेश्चंस हैं? आई थिंक आई स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज फिर इस तरह से फिर वो आधा बीच में रह जाएगा तो समझ नहीं आएगी इतनी ज्यादा। मैम आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। मैम मैं शादी क्वेश्चन? वाले, बहुत रश है यहाँ पे, तो मैं छत पे बैठी हूँ शादी फिर भी। वाला? यस मैम। अच्छा चलो कुछ नहीं होता, व्हाट यू हैव टू टेक। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी को तो लेट मी नो। आप लोगों की प्रेजेंटेशंस लेनी है मैंने, आई सेंड यू द डिटेल्स कि किस तरह से लेनी है मैंने, बिगिनिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, बिकॉज आप लोगों को विंटर वेकेशंस होती है? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नो मैम। ये क्या बात है? तो फिर उन्होंने जो अनाउंस की हुई गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से वो नहीं होंगी? मैम मे भी नो इस बार मैम, उस टाइम पे हमारे वाइवाज होंगे। नहीं तो आप लोगों का वो तो हो ही नहीं रहा ना, मिड टर्म्स तो नहीं हो रहे। मैम वैवादी हो रहे हैं ना। वाइवाज ही वाइवा हो होंगे रही ना है। मैम। नहीं, क्या मतलब है बस? Ma'am, मैम लेकिन बीपीए का Bible वाइवा हो रहे पहले हैं। कभी हुई नहीं है मैम हमें इस टाइम पे छुट्टी, मैम हमारी वाइवा ही हो रही होती। प्रेजेंटेशन या ओरल टेस्ट की फॉर्म में लेके ना मिड टर्म की जगह, तो इस तरह करते हैं मोस्टली टीचर्स ने इसी तरह प्लान करते किया। मैम प्रेजेंटेशन मैम कितने मार्क्स की होगी? A presentation followed by a mini viva will be 20 marks, 20%. थैंक यू मैम। Okay. 10% class participation. हाँ जी। ओके मैम। असाइनमेंट 10% होगी। असाइनमेंट जो है, एक और असाइनमेंट आप लोगों से बनवाऊंगी मैं, जो पहले असाइनमेंट आप लोगों ने दी थी दैट विल बी 5%, और एक और असाइनमेंट होगी दैट विल बी अनदर 5%, क्लास पार्टिसिपेशन के 10%, और जो आपकी प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय द स्मॉल जो वाइवा होगा दैट विल बी 20%। ठीक है, बाकी 60% फाइनल्स है। मैम मैम प्रेजेंटेशन में आप कितने लेक्चर्स मैक्सिमम करेंगी? यार उसमें होगा ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बच्चे को टॉपिक देती हूँ, मतलब अगर मैं बेसिकली ऐसे कर रही हूँ कि हर अ, हर मतलब रोज आप जो है, टॉपिक दे रही हैं, टॉपिक दे रही हैं। टॉपिक में दूंगी आपको, जैसे अगर, लेकिन अगर 5 बच्चे आज प्रेजेंट कर रहे हैं या 6 यस बच्चे मैम। प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो 6 के 6 टॉपिक्स होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, जो अगर आप उनका पार्ट होगी तो वो टॉपिक सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे। प्रेजेंटेशन सिर्फ एक पे आपने तैयार करनी है, लेकिन फॉर द वाइवा पर्पसेस यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द 4 या 5 जितने भी टॉपिक्स होंगे वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और जो वाइवा होगा वो एंड पे मैं कलेक्टिवली आप जो 5-6 बच्चों का वो ले लूंगी उस तरह से। ओके ठीक है? मैम। मैम टॉपिक सब बच्चों का एक होगा? नहीं, ग्रुप्स में बनेंगे ना बच्चे, जैसे अगर आज 10 बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप्स एज सच आप लोगों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बट मैं 10-10 बच्चों के एक एक दिन में, आई गेस बिकॉज आप लोगों की क्लास ज्यादा है तो उसमें टाइम लगेगा, तो 10-10 बच्चों के मैं लूंगी हाँ प्रेजेंटेशन।
लेकिन मैं अभी आप लोगों को ना फर्दर बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो इसको करना है मैंने, इसलिए आप भी परेशान ना हो, बट आई लेट यू नो, ठीक है? ओके ओके मैम मैम। कितनी डेज में लेना है क्योंकि आजकल हम लोग फ्री होते हैं। हाँ मतलब आई लेट यू नो, अभी मैं आज शाम तक आप लोगों को ईमेल कर दूंगी, ठीक है? जो मैम भी ये मैंने, होगी तो इंडिविजुअली। हाँ हाँ ऑब्वियसली इंडिविजुअल होगी ये। ओके चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड। मैम थैंक यू सो मच मैम आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।